Okay. So find the combined equation of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the following equation. Okay, so let's draw a diagram first to understand what it is. So this is your coordinate axis, and here it is saying that this is x-axis and this is your y-axis. So find the combined equation of a pair of line passing to the origin. Okay, so I want to find the combined equation of pair of line that is passing through origin. So let that line be this, which is passing through origin, and combined equation. So this is my equation of line which I have to find. Okay, and perpendicular to the line represented by following equation. Okay, and perpendicular to the line, fine. So I have to find I have to draw the line which is perpendicular to the following equation of line. So say that line is this. Okay, this is perpendicular to this line, and say another line is this. This is again perpendicular to this line. So this green line is given to me. Let me solve second one. Is given to me, and that is 5x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0. Now I have to look for two numbers which when multiplied should give 5 into 3 minus 15, and when added should give 2. So that will be 5 and minus 3. So 5x square plus 5xy minus 3xy minus 3y square is equal to 0. Here I can take 5x as common. I'll get x minus, just a minute, I'll get x not x minus, x plus y. Here I will take minus 3y as common. I will get x plus y. Now here I can take x plus y as common. I will get 5x minus 3y is equal to 0. By zero property I can say x plus y is equal to 0, or if you want you can say even and 5x minus 3y is equal to 0. So from here in this equation I will get slope as minus 1. Here I will get slope as 5 by 3. So let me write minus 1 and 5 by 3. So let the slope of this be say 5 by 3, and let this be minus 1. So if this slope is 5 by 3, what will be the slope of this line, black one, our line? It will be minus 3 by 5. And what will be slope of our not black one, red one line? It will be 1. So I have got the slope of our line which we are looking for. So if we have the slope of the line, okay, you can find the equation of line. How? Y is equal to mx. Okay, so y is equal to mx. This is the equation of this line. Similarly here, y is equal to minus 3 by 5x. This is the equation of this line. I can write these two lines as standard form of linear equation way. What could be that? This I can write as 3x plus 5y is equal to 0, and this I can write as x minus y is equal to 0. Now they have said to find the combined equation of a line. So just multiply 3x plus 5y into x minus y is equal to 0. 3x square. Here it is minus 3. Here it is plus 5y. So minus 3 plus y is plus 2 xy minus 5y square is equal to 0. This is the required equation of the line which we are looking for. Understood? Okay. So let's start question number 5. Second one, the line 3x plus y is equal to 0 may be perpendicular to one of the line given by ax square plus 2x square plus by square is equal to 0. So ax square plus 2xy plus by is equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2. So what I will do, I will going to draw this, okay, in a just a rough diagram. Okay, so ये रेड वाली लाइन जो है that represent my this homogeneous equation. अब वो बोल रहा है इनमें से कोई तो एक लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है. तो ये 3x plus y is equal to 0 समझो मैंने यहाँ ये बना दी. इससे एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या है -3. तो मेरा लाल वाली लाइन जो है इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 1/3. ठीक है, ओके. अभी ये जो स्लोप 1/3 जो है इज व्हाट इज नथिंग बट m इज इक्वल टू 1/3. ओके, m आई कैन इवन राइट एज y/x भी लिख सकता हूं मैं m को. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पास करता है ओरिजिन से, इसलिए लिख सकता हूं ऐसा. यहाँ मुझे नहीं दिख रहा ना m, लेकिन y और x दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसको डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसको डिवाइड बाय x स्क्वायर करूंगा.
ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से a मिला, यहाँ से मुझे ये x और x कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 2hm, y बाय x मिलेगा मुझे, y बाय x की जगह मैं 1/3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पर b है और 1/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 3 3 9, यहाँ 9 नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ 9 नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये क्या हुआ, ये होगा आपका 9a प्लस 9a प्लस 3 to the 6h plus b is equal to 0. This is the required condition of second statement. Clear? ठीक है, तो ये बोल रहा है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x and y. Okay, so this is not a homogeneous equation. Why? Because all terms में डिग्री जो है वो 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ ax स्क्वायर में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ x में नहीं है, y में नहीं है, c में भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस। ओके, लेकिन हमेशा नहीं करेगा, उसके एक कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि आपका h स्क्वायर माइनस ए बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो हमने पहले देखा था। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन में हम अभी फाइंड करेंगे दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दैट इज u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट लाइन्स। तो इनका कंबाइंड इक्वेशन ये बन गया, दोनों इक्वेशन का 0 करो। सब जब इसको जब एक्सपांड करते हैं तो आई एम गेटिंग ऑल दी टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स वाई टर्म, वाई स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म, वाई टर्म एंड ए कांस्टेंट। तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, जैसे हम लिखते हैं वैसे ये याद हो जाता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। अच्छा, इसका एक कंडीशन है ये कि मतलब आप इसको है ना, h की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी और समझो x और y की वैल्यू भी अगर समझो आपने 0 रख दी, तो ये जो इक्वेशन है दिस विल गोइंग टू रिप्रेजेंट ए सर्कल। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन है जिससे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, तो वो हम यहाँ बता रहे हैं, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दैट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, okay, will be what, will be abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है एंड x square minus ab is greater than equal to 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ही मैं बोल सकता हूं कि दिस रिप्रेजेंट दी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अदरवाइज नॉट। ओके, okay, so there is a way to remember these conditions, okay, and also this joint equation of the pair of line। So say it is ax square, तो हमें मालूम है, 2hxy ये भी हमें मालूम है, by square ये भी हमें मालूम है। उसके बाद g के साथ x आएगा या f आएगा या y आएगा ये पता नहीं, तो उसके लिए लिखाई में आप ऐसे लिखो, g और ये x, ये कंबाइन में आ गया g और x। ठीक है, प्लस 2g हो गया तो f, ये भी कंबाइन में आ गया एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक तरीका याद रखने का। ठीक है, ओके, अभी इसमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है, ये तो एबीसी हो गया, एबीसी प्लस 2 एबीसी, इसको मानो डी, इसको मानो ई, ये हो गया एफ जी एच, बाद में माइनस आएगा ए एफ, यहाँ लिखो ए एफ, ये 2 है, ये स्क्वायर हो गया, वापस माइनस बी जी, तो यहाँ लिखो बी जी और वापस ये स्क्वायर हो गया, फिर वापस माइनस ये सी है, सी एच, तो यहाँ पर लिखो सी एच, ये वापस स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2 जो है, ये 2 जो है उसको यहाँ लिखना है, ये 2 जो है यहाँ लिखना है, ये 2 जो है यहाँ लिखना है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ओके, और दूसरा और एक कंडीशन है, वो क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमें याद है ही, कहाँ से याद है, हमने जब थीटा निकाला था, tan थीटा निकाला था, मतलब जो एंगल बिटवीन द टू लाइंस, उसका फॉर्मूला से हमें ये याद है, क्या है उसका फॉर्मूला, 2h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीका है इसको ऐसे याद रखने का, क्या, ये इतना बड़ा, ठीक है, ये इतना बड़ा जो दिया है, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एच स्क्वायर माइनस सी एच इक्वल टू 0। इसको और एक याद करने का तरीका है, कौन सा है वो तरीका, डिटरमिनेंट मेथड से तरीका है, वो क्या है, एबीसी, आप एबीसी ऐसे लिखो, ए, ये बी और ये सी, डी ई है ही नहीं, भूल जाओ, फिर एफ जी और एच, फिर सिमेट्री निकालो, ये एच है तो यहाँ एच, यहाँ जी है तो यहाँ जी, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ, इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर,
यहाँ पर ये जो मैंने इतना बड़ा सारा लिखा है ये, ठीक है, ये और ये जो मैंने लिखा है इट इज 100% सेम। एक्सपांड करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हाँ वो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ही मैं बोल सकता हूँ कि दिस इक्वेशन मतलब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, अदरवाइज नॉट। So there are certain remarks which we have to understand. So let's discuss all these remarks. First is these lines are parallel to the line represented by ax square plus 2x square plus by square is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी कौन सी थी? ये वाली ax square plus 2x square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। और ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? That equation line is this ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों भी लाइंस जो है ना, इसके लाइन और इसके लाइन, ये दोनों भी लाइंस जो है दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक ही है, क्या? यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर वाली दैट विल पास फ्रॉम ओरिजिन, और नीचे वाली जो है दैट विल नॉट गोइंग टू पास फ्रॉम ओरिजिन। ओके, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमें मालूम है, हमने देखा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी 0 होता है, इसका मतलब tan थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब थीटा क्या है? थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, इसका मतलब व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज योर थर्ड लाइन। ठीक है, और कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल टू ईच अदर और कोइंसिडेंट, ठीक है, वो क्या है? न्यूमरेटर का अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाएगा, मतलब tan 0 विल बी 0। इसका मतलब these lines are parallel to each other, so that is the fourth condition. And fifth condition is this line, if it represent the is homogeneous or not homogeneous, a pair of combined equation of line or joint equation line, the point of intersection of these line is represented by this। इसको याद कैसे करना है, इसकी टेक्निक क्या है, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। Now fifth point is the expression abc plus 2fgh minus is the expansion of determinant। ये पहले ही बता दिया था, राइट? अच्छा, a joint equation of an angle of the bisector, joint equation of bisector of an angle between the line represented by this is h square minus a minus b xy minus hy square is equal to 0। Here coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0, hence bisectors are perpendicular to each other। okay, ये मैं समझाता हूँ ये क्या बोल रहा है वो। ठीक है, ये बोल रहा है कि समझो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लाइन में एक लाइन है ये, ठीक है, जो कि दी गई है, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो एक लाइन समझो ये है ऐसी, और दूसरी लाइन है समझो ये है ऐसी। ठीक है, नहीं ऐसी नहीं लेता हूँ, ये समझो ऐसी लेता हूँ, ऐसी एक लाइन ऐसी। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये क्या है? ये आपको दी गई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको लाइन दी गई है। अब क्या बोल रहा है वो? आपको बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस फाइंड करना है। मतलब क्या? बाइसेक्टर्स निकालना है। बाइसेक्टर मतलब क्या? एंगल को बाइसेक्ट करना है। कैसे करूंगा? चलो, एक एंगल बाइसेक्टर मैंने समझो यहाँ से लिया, ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल, ठीक है, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये इक्वल है। तो समझो मैंने इसको माना ए, नहीं ये नहीं, समझो मैंने इसको माना P, और तो ये एंगल भी P होगा। सिमिलरली आई विल हैव वन मोर बाइसेक्टर्स एंड दैट बाइसेक्टर विल बी ओवर हियर। समझो यहाँ कहीं है वो एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल मेरा Q है तो ये एंगल भी मेरा Q होगा। एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है इसलिए। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। कौन कौन सी दीज टू लाइंस? एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, ये, ठीक है, और दूसरी लाइन ये वाली, ये। इन दोनों इक्वेशन का मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर बाइसेक्टर दिया है तो उसका जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? वो होगा ये, वो होगा ये। और आप यहाँ गौर से देखो कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी लाइन जो है ना, ये आपस में 90 डिग्री बना रही है।
आपस में 90 डिग्री बना रही है। अगर ये आपस में 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको अगर आप कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपका a होगा और ये आपका b होगा। तो h माइनस h 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन in the point third, condition for lines to be perpendicular to each other is a plus b is equal to 0। तो ये इसका a हो गया, ये b हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 मिलेगा। तो वही हमें यहाँ मिल रहा है। समझ में आ गया ये? Okay, so there is a technique to remember the intersection, point of intersection of these two lines given by combined equation of a line, okay, pair of lines। So ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये जो कंडीशन है, that will going to represent the pair of lines, इसको 3 बार लिखो, ऐसे ऐसे 3 बार लिख लो, ओके। और उसके इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। चलो मैं यहाँ बताता हूँ, ए एच जी ए एच जी ए एच जी ए एच जी, 3 बार लिखो। नीचे लिखोगे एच बी एफ एच बी एफ एच बी एफ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी भूल जाओ। बाद में एच इंटू एफ, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। एच इंटू एफ मतलब वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, ये वही चीज यहाँ बता रहा हूँ। एच इंटू एफ माइनस बी इंटू जी, ये लिखना है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, एच इंटू एफ माइनस बी बी इंटू जी। उसके बाद में डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर। इसका काम हो गया, इसका काम हो चुका है, अभी इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे, क्या है वो, ए बी अपॉन एच स्क्वायर, ये ए बी, ओके, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस एच स्क्वायर आ गया, मतलब ये चीज यहाँ पर है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ओके। उसके बाद में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट आएगा जी एच माइनस ए एफ, या ये देखो यहाँ पर ये जी एच, ये माइनस ए एफ, ये आ गया, ये दिस डिवाइड बाय वापस ये। तो ऐसा मतलब तरीका है इसको याद रखने का। अंडरस्टूड? ओके। Now it says show that the equation this represent a pair of lines. Find the acute angle between them. Also find the point of their intersection. मतलब क्या? मतलब ये जो लाइन दी गई है, ये ऐसी लाइन होगी, ठीक है, ये होगी कुछ ऐसी लाइन होगी, ऐसी और ऐसी, ऐसी कुछ तो लाइन होगी, ओके, ये ऐसी लाइन होगी, ऐसी, ओके। अब ये लाइन सचमुच रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, उसके कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होते हैं, वो कंडीशन होते हैं ए बी सी, okay, ABC plus 2 FGH minus A F square minus B G square minus C F square is equal to 0। ये फर्स्ट कंडीशन होता है। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेकंड कंडीशन होता है H square minus AB that should be greater than or equal to 0। अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप कह सकते हो कि दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब ये वाला एंगल पूछा है, कैसे फाइंड करेंगे ये। तो ये एंगल फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इससे आपको ये एक्यूट एंगल मिल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। क्या है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको समझो मैंने ए मान लिया, कैपिटल ए, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो बाहर करने के लिए बोला था, वो है एच एफ माइनस जी एस अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आएगा जी एच माइनस ए एफ डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर, ओके। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एफ जी एच इन दीज इक्वेशन, सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, ए बी सी कहाँ से मिलेगा, आई विल गोइंग टू कंपेयर दिस with my standard form of pair of linear equation. What is that? That is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ से मिल रहा है a की वैल्यू 1, ठीक है, a की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है यहाँ से, ये देखो 1 है। और h की वैल्यू जो है वो मिल रही है मुझे -3, ठीक है, -3 मिल रही है। और b की वैल्यू मुझे 5 मिल रही है, b की वैल्यू 5 मिल रही है। और g की वैल्यू जो है b की वैल्यू 5 और g की वैल्यू, हाँ, g की वैल्यू जो है वो भी मुझे 5 मिल रही है। और f की वैल्यू जो है f, वो मुझे मिल रहा है -7। और c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू, ओके, c की वैल्यू वो मुझे मिल रहा है 9। जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन,
If it is satisfying, you can say this represent a pair of line. Then substitute the values over here, take the mod, मतलब नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए. Then find the थीटा. अगर समझो tan थीटा की वैल्यू आपको कुछ ऐसी आ गई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि समझो आपको tan थीटा की वैल्यू क्या आई, समझो -2/5 आ गई. ठीक है, तो आपको इसका मॉड लेना है और थीटा की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी tan इनवर्स 2/5. दिस विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. ठीक है, ऐसे करना है. और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर. गॉट इट. ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो combined equation of pair of line passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2, okay, in x and y. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये मेरा एक इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ये दिस इज वन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन है a1x + b1y = 0, इसका a2x + b2y = 0. अगर मैं कंबाइंड इक्वेशन निकालता हूं तो कंबाइंड इक्वेशन विल बी दिस, combined equation will be a1x + b1y into a2x + b2y. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड फाइनली आप लाइक टर्म्स को यहाँ ले लोगे एक्स वाई का. तो ये जो है ना a1 a2 जो मिल रहा है, इसको आप मान के चलोगे a. यू विल गोइंग टू एज्यूम दिस एज a, यू विल गोइंग टू एज्यूम दिस एज a. ओके, और ये जो इतना बड़ा दिख रहा है a1 b2 + a2 b1, इसको आप मानोगे 2h, इसको आप 2h मानोगे, यू विल एज्यूम दिस. ओके, और b1 b2 जो है इसको आप मानोगे सिर्फ b. ठीक है, तो ऐसा एज्यूम करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है ax² + 2hxy + by² = 0. ये इक्वेशन बनता है. आप बोल सकते हो दिस इक्वेशन इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. गॉट इट. हाँ सर. हाँ, यही है इसमें. Okay, if one of the line given by ax² + 2hxy + by² = 0 is perpendicular to px + qy = 0, then show that ap² + 2hpq + bq², okay, this should be bq² = 0. It means it is we need to show that ap² + 2hpq + bq² = 0. That's what we need to show. Fine. So if one of the line given by this, okay, so I have this combined equation of a line, and if one of the line out of these two is perpendicular to px + qy, so this is the joint equation or combined equation, homogeneous equation, so passing through origin. So I will call this as ax² + 2hxy + by². This represent this line. Now one of the line given by this is perpendicular to px + qy = 0. तो दो लाइन है, उसमें से एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, कोई तो एक लाइन की मान के चलो मान के चलो इसके परपेंडिकुलर है ये. ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज px + qy = 0. So what will be the slope of this line? Slope of this line will be -p/q. That will be the slope of this line. So if the slope of this line is -p/q, what will be the slope of this particular line? Slope of this particular line will be q/p. q/p. Why? Because this is perpendicular, na? So this will be q/p. Now this particular line is passing through origin. So what will be the equation of this line? The equation of this line will be y = q/px. This will be the equation of this line. Now this I can further write as y/x = q/p. y/x = q/p. Now this I will going to substitute where this y/x = q/p. I will going to substitute in this particular equation. How can I substitute this? For that, first I need to divide by x². I need to divide by x². So when I divide by x², what I'll get? I will get a + 2h y/x plus b, then b y/x the whole square. That's what I will going to get when I divide by x².
Okay, and then y by x is what? Q by p. So I'm writing that a 2h then q by p plus b q by p the whole square. That is finally that is equal to 0. So when I multiply by p square on both the sides, so what I will get? I will get a p square plus 2h pq plus bq square is equal to 0. Hence proved. So this or in question they have given, okay, yeah, hence proved. Understood this? So let's solve question number 9. If one of the line given by ax square plus 2h square plus by square is equal to 0 bisect an angle between coordinate axis, then show that a plus b the whole square is equal to 4h square. तो ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, इनमें से कोई तो एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो इट विल गोइंग टू मेक 45 angle with positive direction of x-axis. The slope of this line will be tan 45, which is 1. So I'm going to substitute the value of m is equal to 1 in this equation. लेकिन यहाँ तो m नहीं है, तो क्या करेंगे? Divide by x square on both the sides. तो उससे y by x मतलब m मिल जाएगा, which is nothing but auxiliary equation. तो y by x की वैल्यू 1 है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो, you will get a plus 2h plus b is equal to 0. But we have to prove a plus b the whole square. So write a plus b on one side and transpose 2h on other side. Then squaring on both the sides, you will get the answer. Hence proved. Okay. Yeah. Okay. So here it says find the angle. Okay, find the angle between lines represented by ax square plus 2h xy plus by square is equal to 0. तो मैंने ये coordinate axis बना दी. This is my x axis and this is my y axis. Okay, ये homogeneous equation है of degree 2, मतलब the line will pass from origin. तो मैंने दो लाइन बनाई है which is passing through origin. एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, और इसका होमोजेनियस इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मुझे इन दोनों लाइन के बीच का ये एंगल फाइंड करना है. तो ये एंगल कैसे फाइंड करूंगा? दिस एंगल इज नथिंग बट, पहले समझो ये एंगल मैंने फाइंड किया, दैट इज से θ1, और फिर ये एंगल मैंने फाइंड किया, दैट इज से θ2. सो थीटा विल बी व्हाट? थीटा विल बी θ2 minus θ1. So what will be that θ1? For that I should have the equation of a line. So the equation of a line no need to find here, क्योंकि homogeneous equation दिया हुआ है. तो इससे मैं sum of slope निकाल सकता हूँ. We have a formula of sum of slope. What will be that sum of slope? Sum of slope will be m1 plus m2, that is equal to minus 2h upon b. This is the sum of slope, and product of slope will be m1 m2 is equal to a by b. This we know from earlier theorem. Okay, अभी m1 क्या है? m1 है tan θ1, ये है, this is tan θ1, और m2 क्या है? आप उसको tan θ2 मान लो, मतलब स्लोप. ठीक है, इसका स्लोप समझो m2 है, समझो इसका स्लोप m2 है, तो मैं इसको लिखूंगा tan θ2, और इसका स्लोप m1 है, तो मैं इस m1 को लिखूंगा tan θ1. ओके, मुझे फाइंड करना है क्या? मुझे इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. तो मैं इन दोनों का बीच का एंगल फाइंड कर सकता हूँ. कैसे? मुझे tan θ1 tan θ2 पता है, तो व्हाट आई कैन डू, मुझे फाइंड करना है θ2 minus θ1. ये एंगल है बिटवीन दीज टू लाइंस विच इज थीटा. तो मैं क्या करूंगा? tan निकालता हूँ, इसका tan निकालता हूँ. तो अगर मैंने tan निकाला इसका, तो मुझे मालूम है tan ऑफ θ2 minus θ1 क्या होता है, दैट इज tan θ2 minus tan θ1 डिवाइड बाय 1 plus tan θ1 एंड tan θ2. ये फॉर्मूला है tan का. ओके, tan θ2 क्या है? वो m2 है, और tan θ1 क्या है? ये m1 है, डिवाइड बाय 1 plus m1 m2. लेकिन मेरे पास m2 minus m1 तो है ही नहीं, मेरे पास m1 plus m2 है और m1 m2 है, m2 minus m1 नहीं है. तो m2 minus m1 को मुझे निकालना पड़ेगा. कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ निकालता हूँ. ओके, m2 minus m1 the whole square, that is nothing but m1 plus m2 जो कि मेरे पास है, the whole square. Okay, minus 4, here I can write minus 4 m1 m2 है ना. इससे मुझे m2 minus m1 मिल जाएगा. m1 plus m2 by formula is what? Minus 2h upon b the whole square, and this is 4. m1 m2 is what? a by b.
तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ बी आ रहा है। सो लेट्स सॉल्व दिस। 2 2 जा 4 एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर 4a है और यहाँ सिर्फ b है। आई विल गोइंग टू मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय b। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ मिल जाएगा 4 एच स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन है, इसमें से समझो मैंने 4 कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा एच स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, m2 माइनस m1 द होल स्क्वायर आ रही है। ये आ रही है m2 माइनस m1 द होल स्क्वायर, लेकिन मुझे m2 माइनस m1 द होल स्क्वायर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ m2 माइनस m1 चाहिए, मुझे सिर्फ m2 माइनस m1 चाहिए, m2 माइनस m1 द होल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। ओके, आई विल डू स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने यहाँ स्क्वायर रूट बनाया और यहाँ भी स्क्वायर रूट बनाया। जब भी स्क्वायर रूट बनाते हैं तो प्लस और माइनस लिखते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, एंड दिस विल बी एच स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b। अब ये m2 माइनस m1 जो है वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब मिल गया m2 माइनस m1 जो है। ठीक है, सो व्हाट इज माय m2 माइनस m1, फ्रॉम देयर इट इज प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 क्या है, m1 m2 मुझे पता है, कहाँ गया वो m1 m2, वेयर इज m1 m2, दिस इज a by b बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a by b, दिस विल बी योर a by b। तो मुझे अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ b है, यहाँ तो b नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ मैंने ये गलत किया है, डिवाइड बाय b आएगा, प्लस और माइनस 2 एच स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय b नहीं लिखा है, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज डिवाइड बाय b। okay, so let me write that now, this entire plus or minus this divide by b, पूरा ऐसा डिवाइड बाय b आएगा। यहाँ भी b ले लेता हूँ, ये b और ये b। ओके, तो क्या मिला, मुझे मिल गया इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b। ये b और ये b कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो मुझे अभी क्या मिला, यहाँ पर मिला tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। व्हाट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1, इट्स नथिंग बट थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b। अंडरस्टूड दिस। अभी इसको अगर आपको और एक फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इन अनदर फॉर्म, या यू कैन राइट इन अनदर सेम इक्वेशन, यू कैन आल्सो राइट इन दिस फॉर्म, दैट इज tan थीटा is equal to mod of 2 root of h square minus ab divided by a plus b। ओके ओके, अभी समझो tan थीटा क्या है, tan थीटा रिप्रेजेंट 2 लाइंस ऑफ ए होमोजेनस इक्वेशन, मतलब एंगल बिटवीन 2 लाइन। ठीक है, अभी ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, और इन दोनों लाइन के बीच का अगर ये थीटा है, ओके, तो हाउ कैन यू फाइंड द थीटा, बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब ये मॉड दिया है, मतलब क्या, मॉड दिया है मतलब यू विल गेट एक्यूट एंगल, और अगर आपने मॉड हटा दिया तो आपको 2 एंगल मिलेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, मींस 1 एक्यूट एंगल एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर tan थीटा इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो वैल्यू है a प्लस b वो क्या होगी, वो 0 होगी। तो tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है, जब थीटा when theta is equal to 90 degree, then only tan theta will be infinite। तो infinite कब होता है, जब tan theta is equal to 1 upon 0, मतलब when a plus b is equal to 0, then we can say these two lines is making 90 degree। okay, that is the first condition। okay, fine। and दूसरा कंडीशन क्या है, अगर समझो 2 लाइन जो है वो सेम लाइन है, सेम इंटर मतलब होमोजेनस इक्वेशन लाइन है, लेकिन इट इज सेम लाइन, मतलब एक लाइन ये है और दूसरी लाइन जो है वो इसके ऊपर ही है, दूसरी लाइन ये है इसके ऊपर। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन हो गई ओवरलैपिंग लाइन। तो इसका tan थीटा क्या होगा, इसका tan थीटा 0 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 0 है ना, तो थीटा विल बी 0। तो जब थीटा 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
मैं बोल सकता हूँ 2, ये जो है ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आएंगी अगर ओवरलैपिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है। तो व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है तो जो लाइंस है दोस टू लाइंस विल बी ओवरलैपिंग लाइंस। और दूसरा कंडीशन क्या है? अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है देन these two lines will going to make 90 degree among each other. They will be perpendicular to each other. Okay, so that's what is the important remark over here. Now let's understand the solve example. Show that the line represented by these are perpendicular to each other. Okay, तो हम क्या करेंगे? पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू h की वैल्यू -2 मिलेगी और b की वैल्यू -3 मिलेगी। अगर परपेंडिकुलर बोला है तो कौन सा कंडीशन है? कंडीशन है a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ a 3 है और b -3 है, तो 3 - 3 is 0। इट मींस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नाउ सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड दीस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है? h स्क्वायर माइनस ab दैट शुड बी 0। तो कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 1 आई, h की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू 4 आई है। ओके, पुट करो कंडीशन पे। क्या है कंडीशन? h स्क्वायर माइनस ab शुड बी 0। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, देखोगे कि 0 मिल रहा है। इट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन these lines, these homogeneous equation of line. Same thing, you will going to apply this particular formula. Tan theta is equal to 2 square root of h square minus ab upon a plus b. Okay, find the value of a, b and h, substitute over here, you will get the acute angle. They are saying acute angle, ठीक है? acute angle में मतलब क्या? acute angle मतलब you have to take mod, नेगेटिव नहीं आएगा tan थीटा की वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगी। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बोला है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे, बस उतना ही है। tan थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ जो भी है उसके बाद माइनस निकाल। अब इसका ऑब्ट्यूज बोला तो क्या करोगे? -1 कर दोगे। सो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी पाई प्लस पाई बाय 4। करेक्ट, सो दैट विल बी योर आंसर। ऑब्ट्यूज एंगल बोला है तो, ठीक है? सो दिस 1 2 3 4 and 5 they have solved like that only. Okay, next question number 4. Find the combined equation of line passing through the origin and makes pi by 6 with the line this. Okay, this also angle is given theta. Okay, line is given. So slope of this line you can find, it is minus a upon b. So it is -3 upon 1, that is -3. So slope you know 1, angle you know, just substitute the value of this, you will get the value of m. Okay, now replace this value of m with x. That will be, now this is actually the auxiliary equation of the given combined equation, right? So replace the value of m with x, that will be the combined equation of the line. Understood that? Okay, so now let's solve exercise 4.2. Okay, 1 2 3 4, 4 sub questions 1 2 3 we have discussed. They are very easy, all are based on solved examples. ये सिर्फ फोर्थ वाला में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नंबर नहीं लिखे, वेरिएबल लिखे। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ। a एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस b वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे मैं कैपिटल A कंबाइन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब कंपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है? तो मेरा एंगल जो है वो वो एंगल क्या आएगा? वो एंगल का फॉर्मूला होगा tan थीटा विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab divided by a plus b. So when I compare here, the value of a will be this, the value of a will be this, the value of h will be मतलब 4 हो जाएगा, 4ab हो जाएगा वो, ठीक है? इसको ऐसे नहीं करना है कंपेयर, इसको ऐसे ऐसे करना है, पूरा ऐसे ही कंपेयर करूंगा। तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 4ab आएगा। सिमिलरली b की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो जो भी मिली वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, h स्क्वायर माइनस ए बी, सिर्फ इतना सॉल्व करता हूँ, ठीक है? यहाँ करता हूँ h स्क्वायर माइनस ए बी। सो व्हाट इज माय h? h इज माय 4ab। तो ये लिखूंगा मैं 4ab द होल स्क्वायर, ठीक है? माइनस ab इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और ये b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर।
दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फाइनली मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है, 3 a² प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर। मतलब मैं पूरे स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये आंसर मिलेगा आपको। ओके, और a प्लस बी भी आप अलग से सॉल्व, हाँ a प्लस बी भी आप यहाँ अलग से सॉल्व करोगे तो a² माइनस 3a² विल बी माइनस 2a² माइनस 3b² प्लस b² विल बी माइनस 2b²। तो -2 कॉमन आ जाएगा। ओके, -2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b²। सो दिस आई एम राइटिंग हियर 3a² प्लस b² द होल स्क्वायर डिवाइड बाय -2। ओके, कॉमन लिया है और फिर a² प्लस b²। फिर आगे इसको सॉल्व करूंगा तो 1a² प्लस b², a² प्लस b² विल बी कैंसल। ओके, एंड this will be, okay, I have not written this 2, this 2 will come here. Okay, and this 3 will be it is in root na, it is in root, so I have to write this in root. Okay, I have to write this in root, ऐसे root में लिखना पड़ेगा। ये गलत कर दिया मैंने, 1 minute, this is wrong, let me do it again। ये जो है ये गलत किया है मैंने, तो उसको मैं वापस करता हूँ। रुको, ये रूट में है ना, ठीक है, जब ये रूट में है तो मुझे ये 2 तो ये यहाँ से आ गया 2, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर रूट ऑफ ये निकाल रहा हूँ तो ये मेरा √3 होगा और ये होगा a² प्लस b²। रूट में है ना, ये पूरा रूट में आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिखना है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में -2 कॉमन, ब्रैकेट में a² प्लस b²। ओके, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a² प्लस b² ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट ओनली -√3। लेकिन ये मॉड है, ठीक है। क्यों मॉड, क्यों है, क्योंकि एक्यूट एंगल चाहिए इसलिए मॉड लगाना है। आप यहाँ मॉड लगाओगे, यहाँ मॉड लगाओगे, यहाँ मॉड लगाओगे, यहाँ मॉड लगाओगे और आपको आंसर मिलेगा √3। सो √3 इज द आंसर। अंडरस्टूड दैट? ओके, सो वी गॉट √3। सो ये √3 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, वो tan थीटा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, that will be tan inverse of √3, which is nothing but 60 degree, or you can say pi/3 radian. So this is the answer. Fine. Okay, so here it says find the combined equation of a line passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line this। तो आपने ये लाइन बना दी है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मुझे कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो लाइन आपने बनाई है 3x + 2y = 11, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है -3/2। ओके, -3/2 इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया। ओके, और इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, नहीं पता है, तो इसका स्लोप मैं ले लूंगा, क्या, m ले लेता हूँ इसका स्लोप, ठीक है। मुझे ये दोनों लाइन के बीच का एंगल पता है, क्या है, 30 डिग्री। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, आई हैव ए फॉर्मूला दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। दिस फॉर्मूला आई हैव। थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है tan 30 है, थीटा की वैल्यू tan 30 है और m1 जो है ये इसको मैं m मान लेता हूँ, तो ये m हो गया, माइनस दूसरा m2 जो है ये -3/2 है, तो ये -3/2 मैं लिख लेता हूँ। फिर डिवाइड बाय 1 + m1 m2, तो 1 एक माइनस है तो -3/2 m, ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। ओके, अब ये जो tan 30 जो है, this tan 30 is nothing but your 1/√3। this is 1/√3 is equal to mod of, यहाँ लिखूंगा मैं m + 3 डिवाइड बाय 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 तो ये 2m आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2 - 3m। ओके, अब मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा बोथ द साइड्स, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा ओके, इधर मैंने स्क्वायर किया और यहाँ भी मैंने इसको स्क्वायर किया और फिर स्क्वायर करने के बाद आगे सॉल्व करूंगा तो ओके, तो स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग दिस आंसर। बट व्हाट इज आस्क्ड इज यू हैव टू गिव मी द आंसर एज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो इस m को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, y/x से। क्यों, क्योंकि दोनों भी लाइन जो है वो उसका इक्वेशन y = mx के फॉर्म में होगा, तो मैं इस m को y/x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस m को
y by x the whole square plus 48 y by x plus 23 is equal to 0 करूंगा, and then I will going to multiply this with what, with x square. तो क्या मिलेगा, 3y square plus 48, ओके 48 xy, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x मिलेगा, plus 23 x square is equal to 0. So this is the required combined equation of a line. Okay. Okay, so we have completed that exercise and that question number 7 also it's right. Now let's proceed further. General second order equation in x and y. अभी यहाँ पर क्या है, जनरली सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन x and y. ये यहाँ लिखा है a x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. अब तक हमने सिर्फ ये देखा था, क्या, ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. वो इक्वेशन क्या थी, इट वाज ए होमोजेनियस इक्वेशन, ओके, ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. लेकिन ये जो इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि हर टर्म्स का ऑर्डर 2 इस इक्वेशन में नहीं है. तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है. अब ये एक्स और वाई अलग से कहां से आया है, ये अलग से आया है क्योंकि ये जो लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है टू स्ट्रेट लाइंस दैट आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है ये. ओके, तो इट सेज दैट this is a combined equation of a two line in the general second order degree equation in x and y. मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं विद डायग्राम. तो ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस. ठीक है, so this is my x एक्सिस and this is my y एक्सिस. मेरी जो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, दिस रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस. ओके, एक हो सकती है ये और दूसरी हो सकती है ये. ठीक है. अब ये दोनों भी इक्वेशन जो है इट इज नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का y इंटरसेप्ट होगा. इसलिए इन दोनों इक्वेशन का नाम जो है वो क्या लिया है, वो लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, एक्चुअली इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. और दूसरा ये है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These two equations represented by u and v, इसका combined equation और joint equation होगा uv is equal to 0. So that's what is written over here. Now when you solve this, ठीक है, you will get answer as ये इतना बड़ा आंसर मिल जाएगा, राइट. तो a स्क्वायर मैंने a को क्या माना है, ये a1 a2 को मैंने a माना है. ठीक है, और a1 a2 प्लस a1 a1 b2 प्लस a1 c2, नहीं xy का है, ये xy का ये एक टर्म है, xy का ये एक टर्म है, बस ये दो ही है, राइट. तो ये 2h जो है वो a1 b2 प्लस a2 b1, इसको मैंने माना है क्या, 2h. ये देखो यहाँ लिखा है, ये दिस इज माई 2h. ओके, और ये हो गया, उसके बाद में x आएगा. तो x क्या है, a1 c2 विल बी माय x. उसी तरह ओके, उसी तरह यू विल गेट अदर टर्म्स. ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट है ना. तो ऐसे आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. आपको ये ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्या, ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, ये आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि equation combined equation is ax square plus 2h xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अभी इसमें देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको बाय हार्ट करना है, राइट. इसको बाय हार्ट करना है, तो ठीक है, ये तो आपको बाय हार्ट हो ही गया होगा कि a स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये बाय हार्ट हुआ होगा. ये अलग से ये जो 3 टर्म एक्स्ट्रा आया ना, इसको कैसे याद करोगे, लिखाई से. हम लिखते कैसे है, देखो g को मैंने कैसे लिखा है, देखो g को मैंने ऐसा घुमाया है, ऐसा, और फिर इसको कंटिन्यू कर दिया, x बन गया. इससे हमें याद रहता है ये फॉर्मूला कि g के बाद x आएगा. ठीक है, यहाँ y आ ही नहीं सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकते आप इसको. ठीक है, करने के लिए कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, g y ऐसे कर सकते हो, लेकिन
ये g छोटा है और y जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, g के बाद ऐसा x आएगा। सिमिलरली f और y को भी आप ऐसे याद रख सकते हो। कैसे? f को अपन ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, बड़ा है, और y भी ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ ये लाइन आ रही है और यहाँ ये लाइन आ रही है, इससे आप बाहर कर सकते हो इजीली कि f के बाद y आता है। ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट इज द प्रूफ ऑफ this combined equation of two lines is a general second degree equation in x and y। समझ में आ गया?